We are going to talk today about simplification of context-free grammar. Okay, what exactly it means? In a CFG, context-free grammar G is equal to VTPS. It may not be necessary to use all the symbols in alphabet of what? V union T, that is non-terminal union terminal alphabet, or all the productions in P for deriving sentences. Just consider one example. Here, the non-terminal set consists of A, S, B, C, D, and E. Terminal set consists of A, B, and C. Production rules defined by these productions. Start symbol. Okay. Here you can see B is rewritten as C. One non-terminal is replaced by another one. Again, C has been replaced by D. C is rewritten as D. These type of productions are called unit production. We will be discussing it later. Again, you can see here E is rewritten as lambda or epsilon. This is called null production. Okay. So these are the productions of a grammar. If you closely observe, what is the language generated by this grammar? If you remember, all such strings W belonging to star closure of terminal alphabet and W is deriving from S in 0 or more step. So here you can see from S you are going to use this production. S is rewritten as AB. Again A is rewritten as small a and B as small b. So AB is deriving from S, okay, by using these three productions. These productions are not used, okay. So we can have another grammar in which S, A, B, AB productions rules have been changed, and S where you are having only these three productions and language generated by this is AB. So same language has been generated by these two grammars. LG is equal to LG prime. So we have replaced these into two parts: the useful symbols, useful productions, and useless. So ultimately what you have to do, by simplification you mean by you are going to remove the useless symbols that are not going to be used in the derivation of the strings of the language. Okay, is this part clear? Yes, Sweta. Sorry, sir, for being late. Sorry, sir, for being late, sir. Okay, Ritik. क्या समझ में आया? सर समझ में उतना नहीं आ रहा सर, क्योंकि पिछले क्लास में अटेंड नहीं कर पाता। ये पिछले क्लास से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बार बार, और अटेंड नहीं किया तो फिर भी तो मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रखे हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। अल्टीमेटली समझिए यहाँ क्या हो रहा है। एक ग्रामर जी दिया, ये तो क्लियर होना चाहिए आई थिंक। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। फोर टपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रामर क्या है? वी टी पी एस। एस इज व्हाट? Start symbol. P is what? Production rules. T is terminal alphabet.
V is नॉन टर्मिनल अल्फाबेट। तो इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? S, A, B, C, D और E। फाइन। टर्मिनल्स में आपको क्या दिख रहा है? A, B और C। ओके। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्शन रूल्स आपके पास इतने सारे हैं, in which S is rewritten as AB, A is rewritten as A, B is rewritten as B, B is rewritten as C and so on. Fine. बट अल्टीमेटली जब लैंग्वेज डिराइव करने की बात होती है तो वो लैंग्वेज क्या होता है? वो सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन जो कि स्टार्ट सिंबल से डिराइव हो। तो स्टार्ट सिंबल से क्या डिराइव हो रहा है? यहाँ पर आप देखें तो S इज री रिटन एज ए बी। एस से डायरेक्टली एक ही प्रोडक्शन है जो कि क्या है? ए बी है। ए और बी का एक एक प्रोडक्शन है तो इसका यूज कर सकते हैं, ए इज री रिटन एज ए एंड बी इज री रिटन एज बी। सो अल्टीमेटली यू आर डिराइविंग विच स्ट्रिंग? ए बी। और इसके अलावा तो और कोई भी एस से डिराइवेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट है ये पार्ट इस लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, एक दूसरा ग्रामर लिया जिसमें क्या है, ये 3 वेरिएबल हैं, ये 2 अल्फाबेट हैं, सी का कोई मतलब नहीं क्योंकि सी स्टार्टिंग सिंबल से डिराइवेबल नहीं है। अगेन प्रोडक्शन रूल चेंज कर दिए, ओनली यूजफुल जो प्रोडक्शन रूल थे यूजफुल सिंबल्स को यूज करते हुए वो रखे। तो एस इज री रिटन एज ए बी, ए इज री रिटन एज ए, बी इज री रिटन एज बी। तो अल्टीमेटली व्हाट वी डिड, we have removed the useless symbols and corresponding production rules involving those symbols. तो you are going to get what? ये 3 रूल आपको मिले और जो लैंग्वेज है वो सेम है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स हैं, बहुत ज़्यादा टर्मिनल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रूल्स हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, यूजलेस सिंबल्स को हटा देना है। और यूजलेस सिंबल्स को हटा दिया जैसे, तो जो भी प्रोडक्शन रूल्स उसके साथ इन्वॉल्व हैं उनको भी आपको रिमूव कर देना है। दैट्स इट। ओके, अब क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. ओके फाइन। नाउ हाउ टू डू द रिडक्शन? फाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। फाइन। लेट G is equal to VTPS be a context free grammar. G is said to be reduced or non-redundant if every symbol in V union T, जो भी सिंबल्स यहाँ मौजूद होंगे वेरिएबल्स नॉन टर्मिनल और टर्मिनल अल्फाबेट में, appears in the course of the derivation of some terminal string. अल्टीमेटली वो टर्मिनल स्ट्रिंग के डेरिवेशन में अपीयर होना चाहिए, अदरवाइज वो जो है वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो क्या कहने का अर्थ है कि सपोज x एक सिंबल है जो कि कहाँ मौजूद है, यूनियन ऑफ v यूनियन t में। सो देयर एग्जिस्ट अ डेरिवेशन। ओके, आप क्या करो, इस लाइन को लिखो अपने कॉपी में जल्दी से। लेट G is equal to VTPS be a CFG. G is said to be reduced or non-redundant if every symbol in V union T appears in the course of the derivation of some terminal string. Fine. जो भी सिंबल्स होगा V यूनियन T में वो कहाँ से डेरिवेशन में अपीयर होना चाहिए। तो ये एक आपका एग्जाम्पल दिया गया सेंटेंशियल फॉर्म का। एस से स्टार्ट किया है, कहाँ पहुंच रहे हैं, सेंटेंस में। द स्ट्रिंग दैट इज डिराइवेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल इज कॉल्ड सेंटेंस belonging to language generated by the grammar G. So X must appear in any of the sentences form. अगर ऐसा हो रहा है तब हम कहेंगे कि हाँ वो जो ग्रामर है वो क्या है, रिड्यूस्ड है, नॉन रिडंडेंट है, और ये सारे सिंबल्स के लिए लागू हो रहा है। फाइन, लिख लिया आप लोगों ने। Two important things you are seeing here. One, derivation from the starting symbol and producing some terminal string. Okay, so the strategy for constructing the reduced grammar is in the following steps. Suppose you are having grammar G.
in step 1 what you are going to do, you construct a grammar G1 equivalent to the given grammar G, that is VTPS, what we have earlier talked, so that every variable in G1 is equal to V1 T P1 S derive some terminal string। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट ग्रामर जी के बना रहे हैं, किसको, G1 को, जो कि कोई न कोई टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। और स्टेप 2 में क्या कह रहे हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर G प्राइम G डैश इज इक्वल टू V डैश T डैश P डैश S equivalent to G1 which you have obtained in step 1 so that every symbol in G dash appears in some sentential form of G dash which is equivalent to G1 and hence to G। So हम लोगों ने क्या किया, G से G1 बनाया, इसमें क्या है, जो भी वेरिएबल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपने क्या बनाया, G1 के इक्विवेलेंट G डैश बनाया। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी सिंबल्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं वो सभी के सभी सेंटेंशियल फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। तो सेंटेंशियल फॉर्म का अर्थ क्या हुआ, दे आर डेरिवेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स में पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे वेरिएबल्स रख रहे हैं और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस रख रहे हैं जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या किया, ये जो ग्रामर मिला इस पे फिर ये स्टेप 2 अप्लाई कर रहे हैं और ये फाइंड कर रहे हैं कि जितने भी आपके पास सिंबल्स हैं G1 में, वो अगर सेंटेंशियल फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं तो वो G प्राइम में रहेंगे, अदरवाइज जो नहीं आ रहे हैं सेंटेंशियल फॉर्म में उनको आपको हटा देना है और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को भी हटा देना है। ओके, बिफोर वी मूव फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2, just consider one example. Suppose S is rewritten as AB, A is rewritten as A, B is rewritten as C, C is rewritten as C. ओके, इसमें से टर्मिनल सिंबल्स क्या हैं ये तो बता सकते हैं आप लोग, A एंड C, और नॉन टर्मिनल S, A, B और C। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से नॉन टर्मिनल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं टर्मिनल स्ट्रिंग। ये A is producing terminal string A, C is producing terminal string C, है ना। तो डायरेक्टली क्या हुआ, ये जो अगर पहले स्टेप की बात करें जो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या हो गए, A और C की बात हो गई, है ना। लेकिन अगर आप इसको देखो ध्यान से तो डायरेक्टली तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर डिराइव करेंगे हम लोग तो B किससे रिप्लेस होगा, C से, और C अल्टीमेटली किस में रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में अगर कहें तो B भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट कर रहा है। तो A, C और B हो गया ना, फाइन। नेक्स्ट अगर हम कहें तो यहां से ये पता कर सकते हैं कि A और B आपके टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस सेट के अनुसार, और S क्या प्रोड्यूस कर रहा है, A और B। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि S is rewritten as AB, again A is replaced by small a and B is replaced by C and C is replaced by C। तो ये भी टर्मिनल स्ट्रिंग है कि नहीं, AC। मतलब इसका क्या हुआ कि S भी क्या कर रहा है, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो गया,
ये सारे के सारे वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुआ ना। सबसे पहले Yes, आपने sir. क्या किया, उन सारे नॉन टर्मिनल को लिख लिया जो कि डायरेक्टली टर्मिनल Directly. स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, उन सारे नॉन टर्मिनल्स को ऐड कर रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब एल्गोरिदम पे आते हैं। स्टेप वन, if G is a context-free grammar such that language generated by this grammar is not equal to 5, we can find an equivalent grammar G1 such that each variable in G1 derives some terminal string. तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा, ये नॉन टर्मिनल या वेरिएबल को जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप वन है। हमेशा ध्यान रखिए, स्टेप वन इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड एन इक्विवेलेंट ग्रामर फॉर जी in which all variables are deriving some terminal string. Okay, Terminals. fine. जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसी के एल्गोरिदम की बात करते हैं। ये एल्गोरिदम लिख लीजिए जल्दी से, बिकॉज यू हैव स्टडीड डेटा स्ट्रक्चर सो मच। आई थिंक सिलेबस हैज बीन कवर्ड, है ना, हो गया है ये, Complete नहीं हुआ है. कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी मोस्टली आई थिंक मोर देन 70% तो हो गया होगा। Yes, sir. तो 70% में तो बहुत सारे एल्गोरिदम आए, है ना। जी. जस्ट रीड दिस एल्गोरिदम, जस्ट पहले आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए इसको, ठीक है, सो दैट जब हम लोग डिस्कस करें तो बहुत आसानी से डिस्कशन। बिगिन एक फॉर्म आपका है और ये करस्पॉन्डिंग एंड है। इन बिटवीन एक सेट हम लोगों ने बनाया है, प्रीवियस वी, दिस इज फॉर वेरिएबल वी सेट, this is for next v, again all such a is rewritten as w for some w in star closure of t, and we are talking about grammar g is equal to vtps. Again loop is there, while these two sets are not equal, what we have to do, previous v is equal to next v, and next v is equal to union of previous v and a, such that a is rewritten as alpha for some alpha in t union previous v star closure. This we have to repeat till we get this condition. So जैसे ही equal होगा, we have to go to this thing and we are going to get the new variable set for g1. ओके, लिख लीजिए जल्दी से सब। Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now consider one grammar, write down the question. Consider G is equal to VTPS be the grammar where P consists of following productions. S is rewritten as AB,
A is rewritten as A, B is rewritten as B, B is rewritten as C, and E is rewritten as small c. Okay, so the set V is consisting of what? S, A, B, C and E. ठीक है, टर्मिनल में क्या क्या है? A, B एंड C. प्रोडक्शन रूल आपके पास है यहाँ सामने, और S इज द स्टार्ट सिंबल. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. फाइन. अब एल्गोरिदम आप देखिएगा ध्यान से. हम लोग कर क्या रहे हैं? इसके इक्विवेलेंट एक ग्रामर G1 फाइंड करना है, जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या करेंगे? टर्मिनल स्ट्रिंग्स डिराइव करेंगे. यही है ना स्टेप 1? Yes, sir. ओके फाइन. सो देखिएगा ध्यान से, आपके पास दो सेट है ना, प्रीवियस वी और क्या है? Next week. नेक्स्ट वी. इनिशियली क्या है? प्रीवियस वी एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं. ठीक है. और अगर बात करें, देखिए ध्यान से, प्रीवियस वी इज इक्वल टू व्हाट? 5 फर्स्ट स्टेप में. और नेक्स्ट वी को क्या कर रहे हैं? ऑल सच नॉन टर्मिनल्स. ठीक है, इन विच ए इज रीरिटन एज डब्ल्यू फॉर सम डब्ल्यू इन टी स्टार. तो यहाँ अगर बात करें तो आप देखिए कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बताइए. A, B और E. ए, बी और ई. इसको इस तरह से समझिए, ए इज रीरिटन एज डब्ल्यू. ये जो हम लोग ने कहा, ऐसे सारे ए को क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ रखना है. तो नेक्स्ट वी में आपके पास क्या हो जाएगा, बताइए. A is rewritten as नहीं, प्रोडक्शन नहीं आएगा यहाँ पे. क्या हम लोग वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ना? A, B and तो E. ए, B बी और E. और ई. तो ये तीन चीजें, पहला स्टेप क्लियर हुआ. Yes, sir. ये दोनों चीजें, प्रीवियस v इज इक्वल टू 5 और नेक्स्ट v में ऐसे सारे नॉन टर्मिनल आ गए जो कि डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब अगला कंडीशन क्या कहता है? वाइल प्रीवियस v इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट v. तो आप बताइए, क्या प्रीवियस v और नेक्स्ट v इक्वल हैं? No, sir. तो मतलब कंडीशन ट्रू हो गया. तो हम लोगों को क्या करना है? इसके अंदर, लूप के अंदर जाना है. देखिए ये क्या कहता है, अगर ये कंडीशन मीट कर रहा है तो आपको क्या करना है? प्रीवियस v इज इक्वल टू नेक्स्ट v कर देना है. तो नेक्स्ट v में जो भी चीजें हैं वो आप कहाँ असाइन कर देंगे? प्रीवियस v में. तो प्रीवियस v में अब आप क्या करेंगे? ये चीज असाइन कर देंगे. तो अब कंडीशन क्या हो गया? a, b और e ये कहाँ पहुंच गए? प्रीवियस v में. ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट वी की अगर बात करें तो नेक्स्ट वी क्या कहता है? यूनियन ऑफ प्रीवियस वी. तो आपके पास अभी ऑलरेडी ये प्रीवियस वी में वैल्यू मिल चुकी है. तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? ए, बी, ई. और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कहता है कि ऐसे सारे वेरिएबल्स जिसमें क्या हो रहा हो? ए इज रीरिटन एज अल्फा, और अल्फा किसको बिलोंग कर रहा हो? टी यूनियन प्रीवियस वी. मतलब आपके पास टर्मिनल जो अल्फाबेट है और जो प्रीवियस वी का वैल्यू है, इसके अगर जीरो और मोर कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा वेरिएबल का आ रहा है तो डायरेक्टली उसको आपको यहाँ ऐड करना है. फाइन. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस बी में है उसमें ए, बी और ई है. ठीक. तो इसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ए आ जाए, बी आ जाए या ई आ जाए, और मिलके भी आ सकते हैं, या फिर इसके साथ टर्मिनल भी आ सकता है. फाइन. तो आप देखिए इसमें से कौन सा प्रोडक्शन आपके पास, जो प्रोडक्शन बचे हैं, ये तीन तो आप कंसिडर कर चुके, डायरेक्टली डिराइव कर रहे थे. दो प्रोडक्शन आपके बचे हैं, S is rewritten as AB और B is rewritten as C.
अब इन दोनों प्रोडक्शन में बताइए ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन? Yes. बिकॉज सी इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट ए बी और ई, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तो नहीं आएगा, तो आपके पास Yes. कौन सा प्रोडक्शन कंसीडर करना होगा? यहाँ एस इज री रिटन एज ए बी, बिकॉज ए और बी यहाँ पर मौजूद है प्रीवियस बी में, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेरिएबल है एलएचएस पे वो क्या है? एस है, यही है ना, एस इज रिटन एज ए बी। तो इस एस को हम लोगों को क्या करना होगा? यहाँ यूनियन करना होगा। तो मतलब अब जो नेक्स्ट वी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? ए बी ई और एस। अगेन अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लूप में वापस आए, कंडीशन चेक होगा, प्रीवियस वी नॉट इक्वल टू नेक्स्ट वी। देखिए क्या इक्वल है? प्रीवियस वी में ए बी और ई है, और यहाँ पर क्या है? ए बी ई और एस है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को प्रीवियस बी में नेक्स्ट बी की वैल्यू असाइन करनी होगी। तो क्या हो गया? ए बी ई एन एस। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर से यही काम रिपीट करना है, तो ए बी ई एन एस ये आपने कर दिया। अब फिर से यूनियन देखना है कि क्या इनका कॉम्बिनेशन किसी और नॉन टर्मिनल के करेस्पॉन्डेंस में आ रहा है क्या? देखिए ए बी ई और एस किसी टर्मिनल के साथ, ऐसा कोई प्रोडक्शन है क्या? No, sir. तो मतलब क्या है, अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। नहीं होगा. तो ये आपका करेस्पॉन्डेंस हो गया ए बी ई एंड एस। नाउ यू हैव गॉट दिस थिंग। अब कंपेयर करिए, नाउ यू आर कंपेयरिंग दीज टू सेट्स, प्रीवियस वी एंड नेक्स्ट वी। मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों सेट। प्रीवियस वी इज इक्वल टू नेक्स्ट वी, मतलब कंडीशन फॉल्स। इससे इस लूप से आप बाहर आए, आपको क्या मिला? वेरिएबल वन। तो v1 इज इक्वल टू व्हाट? ए बी ई एंड एस। टी की अगर बात करें तो क्या है? ए बी सी। और प्रोडक्शंस कौन से रखेंगे? जो आपके पास अब जो वेरिएबल्स हैं वही प्रोडक्शन, उसी के करस्पॉन्डेंस में प्रोडक्शन आएगा। तो P1 की अगर बात करें तो P1 विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? S इज रीरिटन एज ए बी, A is rewritten as A, B is rewritten as B and E is rewritten as C। ये प्रोडक्शन क्यों हट गया? Because C is not present in V1। और ये हुआ क्यों? C is not deriving any terminal string। ओके, तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया? आपके पास एक ग्रामर था G इज इक्वल टू VTPS, आपने फाइंड कर लिया क्या? G1, इसमें एवरी वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग सम टर्मिनल स्ट्रिंग। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. फाइन। यस, एनी डाउट? सिंपल जो हमने डिस्कशन किया उसी को क्या? एक बार यस, हाँ बोलिए। सर कैपिटल सी कहाँ चला गया वो समझ नहीं आया। कैपिटल सी यहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये कोई सा भी टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए प्रोडक्शन रूल में कहीं भी ये टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं? नो सर। तो इसी कारण से क्या हुआ, जो एल्गोरिदम था फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। फाइन, ये आपके पास क्या था? वेरिएबल्स था। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द इंक कलर सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ओके, वेरिएबल जो इनिशियल था आपके पास जी में वो क्या था? एस, ए, बी, सी और ई। टर्मिनल सिंबल्स क्या थे? ए, बी एंड सी। ये प्रोडक्शन रूल्स थे। फाइन,
तो सबसे पहले वेरिएबल्स पे वर्क करना था. व्हाट वी हैव टू डू, प्रीवियस वी नेक्स्ट वी. इनिशियलाइज किससे किया, 5 से किया, और नेक्स्ट वी में वो सारे नॉन टर्मिनल अल्फाबेट आए जो कि डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे थे. तो ऐसे आपके पास कौन कौन से मिले नॉन टर्मिनल, ए बी एंड ई. तो इस सेट को आपने क्या किया, ए बी और ई में रख दिया. अब एल्गोरिदम क्या बोल रहा था कि ये दोनों कंपेयर करिए कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं. अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप लूप के अंदर जाएंगे. तो ये इक्वल नहीं थे. सो व्हाट यू डिड, प्रीवियस v इज इक्वल टू नेक्स्ट v, वो आपने यहाँ कर दिया. तो प्रीवियस v की अब करंट वैल्यू क्या हो गई, a b और e. और नेक्स्ट v के करस्पॉन्डेंस की अगर बात करें तो जो प्रीवियस v है उसको आपने रखा यहाँ यूनियन. ऐसे सारे प्रोडक्शंस आपको कंसीडर करने हैं जिसमें इसके कॉम्बिनेशन और टर्मिनल जो आपके पास अल्फाबेट है उनका कॉम्बिनेशन, और ये स्टार क्लोजर मतलब 0 और मोर RHS पे हो. तो आपने क्या किया, इन प्रोडक्शंस को देखा, यहाँ पर C आ रहा था, C तो यहाँ पे है नहीं, तो इस कारण से इस प्रोडक्शन को आपने नहीं कंसीडर किया. बट इफ यू कंसीडर दिस प्रोडक्शन S इज रीरिटन एज AB, तो ये A जो आपका RHS है, A and B are present in the previous V, so we are considering this that S is also deriving the terminal string in indirect way. So what you do, you take the union of non-terminal S. तो आपको क्या मिला, A B E और S मिला. अगेन कंपेयर किया, प्रीवियस V और नेक्स्ट V ये दोनों इक्वल नहीं थे, तो प्रीवियस V इज इक्वल टू नेक्स्ट वी, तो ए बी ई एन एस. नेक्स्ट वी को आपने कंसीडर किया तो प्रीवियस वी यूनियन. अब आपको ऐसे वेरिएबल्स सर्च करने हैं जिसमें इनका कॉम्बिनेशन और टर्मिनल स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन आ जाए, लेकिन ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला. तो ए बी एन ई एस इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट वी. कंपेयर किए इन दोनों को तो प्रीवियस वी एंड नेक्स्ट वी दोनों इक्वल हो गए. जैसे इक्वल हुए कंडीशन फॉल्स हुआ, लूप से बाहर आ गए. आपको क्या करना है, वेरिएबल जो 1 है उसमें इस वैल्यू को असाइन कर देना है. तो ए बी ई एन एस आर नाउ योर वेरिएबल्स. तो आपने क्या किया, जो वेरिएबल सी था इसको रिमूव कर दिया, टर्मिनल एज इट इज रहा. तो सी के करस्पॉन्डेंस में जो भी प्रोडक्शन रूल्स होंगे वो सब आपको हटाने होंगे. तो अल्टीमेटली जो P1 बना उसमें क्या है, एस इज रिटन एज ए बी. ये तीनों प्रोडक्शन आए. जो आपका प्रोडक्शन हटा वो कौन सा प्रोडक्शन हटा, B is rewritten as C. Okay. Now I think this is clear. Yes, Prashant. Yes. Okay. अब सेकेंड स्टेप क्या था, कोई बताए. हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया. सेंटेंशियल फॉर्म में हम लोग एग्जैक्टली सेंटेंशियल फॉर्म में अपीयर होना चाहिए. फाइन. तो ये हम लोगों को क्या करना है, वी कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर G dash V dash T dash P dash and S equivalent to G1 so that every symbol in G dash appears in some sentential form of G dash which is equivalent to G1 and hence to G. Okay. तो इसके लिए क्या करना है, पहले एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर बात करेंगे. सपोज फाइन, जस्ट इसी ग्रामर को कंसीडर करिए. अगर स्ट्रिंग हम लोगों को डिराइव करना है सपोज, तो हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं इसको देखिए. एस से डायरेक्टली जो प्रोडक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए बी. ए के लिए कौन सा प्रोडक्शन है, दिस थिंग. तो हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, ओके. नेक्स्ट बी से क्या प्रोडक्शन आ रहा है, डी. तो एक सिंपल एग्जांपल है जहां हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिराइव कर ली एस से. तो ये सब के सब सेंटेंशियल फॉर्म में है. फाइन.
तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, एस से जो भी सिंबल्स रीचेबल हैं, चाहे वो नॉन टर्मिनल हो या फिर टर्मिनल, the symbols which are reachable from the starting symbol are going to be in the sentential form. अगर कोई एस से रीचेबल नहीं है, मान लीजिए यहां पे रहता है C is rewritten as small e, फाइन। तो क्या ये जो सिंबल था, ये जो नॉन टर्मिनल है या फिर ये जो टर्मिनल है, एस से रीचेबल है? स्टार्टिंग सिंबल से नो सर। नहीं है, तो ये किसी सेंटेंशियल फॉर्म में आ सकता है क्या? नो सर। तो बस यही हम लोगों को करना है। तो ऐसे सिंबल्स को हटा देना है जो कि एस से रीचेबल नहीं हो, फाइन। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग सिंबल से करेंगे, ठीक है। और नॉन टर्मिनल और टर्मिनल को हम लोग देखेंगे। तो एस से जो डायरेक्टली डिराइवेबल होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर वो जो आपके पास नॉन टर्मिनल है उससे कुछ अगर डिराइव हो रहा है तो उसको रखेंगे। और ये काम कब तक करेंगे? जब तक कि आपका कंप्लीट जो प्रोडक्शंस हैं वो आप इवेल्युएट ना करें। ओके, तो अभी आपके पास जो एग्जांपल था उस पर वापस आते हैं। जस्ट सी, ये आपके पास है प्रोडक्शंस। देखिए G1 आपको मिला हुआ है ना। ये जो प्रोडक्शंस हैं, एस इज रीरिटन एज ए बी, ए इज रीरिटन एज ए, बी इज रीरिटन एज बी एंड ई इज रीरिटन एज स्मॉल सी। ये प्रोडक्शंस आपके पास हैं। वेरिएबल्स भी आपको मिला हुआ है, ए बी ई और एस, और टर्मिनल सिंबल्स भी हैं। आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है कि कौन से जो वेरिएबल्स हैं, कौन से टर्मिनल्स हैं, वो सेंटेंशियल फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, तो इस आप क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल का एक बना लिया और एक टर्मिनल का बना लिया। ओके, और इसको हम लोगों को जी डैश फाइंड करना है। तो दिस वन इज कॉल्ड वी डैश एंड दिस इज कॉल्ड टी डैश, फाइन। स्टार्ट कहाँ से करना है, किस वेरिएबल से हम लोग करेंगे? एस से करेंगे, ठीक। अब नाउ कंसीडर फ्रॉम एस which symbols you are directly deriving. Consider this. कौन कौन से सिंबल? ए और बी, ये क्या है, नॉन टर्मिनल है ना। तो आप क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल वी में इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, स्टार्टिंग सिंबल को रखा, व्हाट यू कीप्ट, एस। उसके बाद आपने देखा कि एस से डायरेक्टली क्या डिराइव हो रहा है, तो ए और बी हो रहा है। ओके, नाउ अगेन कंसीडर, ए और बी से क्या क्या चीजें डिराइव हो रही हैं, ए और बी, ये टर्मिनल सिंबल्स हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल में आपको क्या दिखेगा, ए दिखेगा और बी दिखेगा, ठीक। अब आप बताइए सी क्या दिख रहा है कहीं से? नो सर। ई क्या दिख रहा है? नो सर। तो मतलब क्या हुआ कि सारे प्रोडक्शंस जो आपने कंसीडर किए उसके बाद जो आपका जी प्राइम बन रहा है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वी प्राइम, दिस इज व्हाट, एस ए बी, एंड व्हाट इज टर्मिनल सेट, ए एंड, क्या रिमूव किया आपने, ई एंड सी, एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल सिंबल। ओके, अब प्रोडक्शंस की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्शंस रहेंगे पी प्राइम में? यस, एस एंड बी, लास्ट वाला हट जाएगा। हाँ, तो मतलब हम लोगों के पास जो प्रोडक्शंस रहा वो क्या हो जाएंगे, एस इज रीरिटन एज ए बी, A is rewritten as A and B is rewritten as B. Fine.
तो ये स्टार्टिंग में आपके पास जितने प्रोडक्शन रूल्स थे और जितने आपके पास नॉन टर्मिनल टर्मिनल सिंबल्स थे, यू हैव फाइंड द रिड्यूस्ड ग्रामर। लेकिन स्टेप्स क्या रखने हैं ये क्लियर है? पहले स्टेप में क्या किया? यस, हाँ, जो नॉन टर्मिनल टर्मिनल स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे थे उनको हम लोगों ने रखा, बाकी को रिमूव कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया? जो सिंबल्स सेंटेंशियल फॉर्म में आ रहे थे वो हम लोग रख रहे थे, और बाकी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रूल्स में उसको हटा देंगे, सिंबल्स जो यूजलेस रहेंगे उसको हटा देंगे। ओके,